Sumit, Sumitra, is my voice audible to you? Hello, is my voice audible to you? Sumitra, is my voice audible? Okay. स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओके, सम प्रॉब्लम इन माइक्रोफोन। ओके 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 ओके। सो तुम एक काम करो, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम एक बार लीव होके फिर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? एक बार लीव होके ज्वाइन हो जाओ। Yes, sir. Now it is fine, right? Yes, sir. ओके, सो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। सुमित्रा, अभी कैलकुलस के बाद सर क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट क्लास से वो सेशन स्टार्ट करूँगा। कौन से सब्जेक्ट में सर? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आपने एनपीटीईएल में वीडियो देखते हो ना आप? हाँ, लेकिन कॉलेज में थोड़ा काम का प्रेशर है तो नहीं देख पाई। अभी स्पोर्ट्स चल रहा है, अभी तो कर लूंगी इस वीक में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा क्या है उसमें। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा क्या है। शायद डिफरेंट चीज़ें हैं ना, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, आई थिंक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है था नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर था। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है? मैं इस वीक में अपडेट कर लूंगी खुद को। हाँ, आप अपडेट कर लेना। आप मुझे एक काम करना, मेल कर देना, ठीक है? जितना जल्दी हो सके कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। A smooth surface is called orientable if and only if it is possible to define a vector field of unit normal vectors n cap to the surface which varies continuously with position. Once such normal vectors are chosen, the surface is considered an orientable surface. Oriented means that this is a oriented surface, right? You can draw the outward normal, है ना? Yes, sir. Now here also you can define the outward drawn normal, right? This is the here ऐसे दिखा रहा है, ठीक है? और here also this is also oriented function, the surface. So now what is this? Let F be a continuous vector field defined over an oriented surface S with unit normal n cap. The surface integral of that vector field F over S, also called the flux of F across S, is integration F dot n cap d sigma. And what is this d sigma? Now if S is part of the level surface gxyz equal to C, अगर आपका surface का formula gxyz equal to C हुआ, then d sigma is nabla g divided by nabla g into p cap
this P is a unit vector dA. So this will be your answer. Now I will, ये समझ में आया ना ये क्या है, एफ डॉट एन डी सिग्मा का मतलब क्या है? एफ डॉट एन डी सिग्मा का मतलब है इंटीग्रेशन डी एफ डॉट प्लस माइनस नैबला जी डॉट पी आई आइडेंटिटी सॉरी यूनिट वेक्टर पी डायरेक्शन into dA. So now I will I will move into solving a problem. So you need to find the flux F equal to yz j cap plus z square k cap outward through the surface S, which is cut from the cylinder y square plus z square equal to 1, z greater than or equal to 0 by the planes x equal to 0 and x equals to 1. So what you need to do, you need to just determine f dot n d sigma. Your f is already given, yes, surface is already given, y square plus z square equal to 1, z greater than or equal to 0. So this is your gxyz. Okay, this is your gxyz, and your x is varying from 0 to 1. So how to solve it? So S is given by gxyz equal to y square plus z square minus 1 equal to 0, defined over the rectangle r equal to rx square as in the figure. The outward unit normal is n cap equal to plus nabla g by modulus of nabla g equal to yj k cap plus z k cap. Here vector p is equal to k cap because y square plus z square ये आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल ऐसे लोगे तो ये एक्चुअली आपको एक इस z की तरफ से हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? तो इसकी इसलिए हमने p वेक्टर को हमने k कैप लिया. अब जैसे इसको ऐसे चूज करना पड़ेगा ताकि ग्रेड g के साथ जो इसका नेबला g के साथ जो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो ना हो जाए, ठीक है? तो नेबला g आपका है 2yj कैप प्लस 2z k कैप. तो 2z k कैप के साथ अगर आप आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल आपने निकाल लिया, आउटवर्ड नॉर्मल क्या है? नेबला g बाई yz cap plus zk cap. Now this, so d sigma is nabla g divided by nabla g dot k cap, and this nabla g is equal to, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ये जो ये यहाँ पे सिंबल की कुछ गड़बड़ी लग रहा है. मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है? चलो कोई बात नहीं. सो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड, दिस स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू योर 1. इट इज ऑलरेडी गिवन, सो दैट इज 1 बाई जेड डी ए. नाउ एफ डॉट एन कैप ऑन एस इज वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब. एफ डॉट एफ इज गिवन, यू हैव डिटरमिनिंग दी एन, सो एफ डॉट एन इज वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब and y square plus z square equal to 1, so it is becomes again z. Therefore outward flux is f dot n d sigma z into 1 by z dA. So this dA is area of the rectangle. So area of the rectangle is what? It is 2 because it is spanning from 1 minus 1 0 to 1 1 0 because it has length 1 and it has breadth 1, width 1 and length 2. So 2 into width into length, width into length, that is actually the area. So area becomes 2. Next is you need to find the flux of the vector field F z I cap plus yz plus x k cap across the unit sphere. Okay, if no direction of the normal vector is given and the surface is a closed surface because your unit sphere is a closed surface, we take n cap in the positive direction which is directed outward. Now using spherical coordinates, so in spherical coordinates the spherical coordinates का फॉर्मूला क्या होता है पता है? x होता है r cos थीटा sin phi, y होता है r cos थीटा cos phi, x होता है r cos थीटा sin phi. अच्छा यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ये होता है r sin phi cos थीटा, r sin phi sin थीटा एंड देन r cos phi.
जबकि फाई वेरी कर रहा है 0 टू पाई पे और थीटा वेरी कर रहा है 0 टू 2 पाई पे। व्हिच गिव्स द डोमेन डी, इसको कैसे डिफाइन होता है इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। कार्टेशियन से कैसे इस पे दो एंगल लेना पड़ता है, एक एंगल प्लेन में कैसे घूम रहा है वो दिखाता है और एक एंगल हाइट को दिखाता है। ये जो 0 टू पाई वाला है ना, ये जेड एक्सिस हाइट को एडजस्ट करता है, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे कॉस फाई है और कॉस 0 टू पाई 1 टू -1 में वेरी करता है, तो हाइट कितनी है स्फीयर के ऊपर, वो पॉइंट का, उसको वो मेजर देता है। सो आर फाई थीटा इज आर साइन फाई कॉस थीटा, आर साइन फाई साइन थीटा एंड आर कॉस फाई। नाउ एफ के ऊपर ये जेड वाई एक्स, तो ये जो आर का जो एक्सप्रेशन है इसको इधर लगाओ, तो एफ आर ओवर फाई थीटा होता है कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई कॉस थीटा के कैप। और यहाँ पे हमने आर को नहीं बिठाया, क्यों? क्योंकि ये यूनिट स्फीयर बोल दिया है, तो आर इक्वल टू ऑलवेज 1। नाउ आर फाई क्रॉस आर थीटा, आर फाई क्रॉस आर थीटा क्या आएगा? ये जो आर फाई क्रॉस आर थीटा है दैट इज एक्चुअली या जो एन डॉट सिग्मा करते हैं ना उसका इक्विवेलेंट है, या आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल का यही आपका एक कार्ल लेके आर फाई क्रॉस आर थीटा का कार्ल लेके हम उसका आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो हमारे पास आर फाई क्या आया, ये आपका आर फाई आ गया, तो इसका फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और उसके बाद थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और उसके बाद उसका कार्ल निकाला, तो ये बना। सुमित्रा आप इसको प्लीज वेरीफाई कर सकते हो, डी आर फाई करो, आर का एक्सप्रेशन है, थीटा डी आर डी थीटा करो और उसके बाद उसका कार्ल निकालो, देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। करो सुमित्रा, उसको आर फाई हमने क्या टास्क दिया है आपके पास, आर फाई यस आपके पास देखिए, बाकी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है आपके लिए एक टास्क है, आपके पास आर फाई थीटा का एक्सप्रेशन दिया गया है इन वेक्टर फॉर्म। आपको क्या करना है, डी इस आर को फाई के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करना है और थीटा के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करना है। हमें कार्ल का फॉर्मूला पता है, फिर वो डी आर डी फाई और डी आर डी थीटा का कार्ल निकालना है, तो ये आपका बन जाएगा कार्ल। तो वो कार्ल क्या आ रहा है आप थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए।
इज इट डन सुमित्रा? वेरी इजी प्रॉब्लम। ये सर, लेकिन मेरा जो केक क्या आया है वो साइन फाई कॉस फाई आया। साइन फाई कॉस फाई कैसे आ सकता है? एक बार अच्छे से देखो। एक बार अच्छे से कैलकुलेट करो। हाँ, मे बी देयर मे बी सम टाइपो हेयर, बट आई डोंट थिंक देयर विल बी सम टाइपो। sin phi cos theta, so if you take, you are taking with respect to इसको तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, आई जे के डी फाई डी थीटा किया, उसके बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। Yes sir, with respect to phi, then with respect to theta, then हाँ। take cross product. हाँ, द क्रॉस प्रोडक्ट। जस्ट क्रॉस चेक वंस अगेन। आपने आर फाई थीटा का तो सही लिया था ना, साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा प्लस कॉस फाई। सॉल्व करो इसको अच्छे से। अच्छा देखो, क्या आपका वो फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे क्या, तो क्या आएगा, जो आर फाई, दैट आर फाई विल कम एज कॉस फाई कॉस थीटा आई कैप, कॉस फाई कॉस थीटा आई कैप प्लस कॉस फाई साइन थीटा आई कैप माइनस साइन फाई के कैप, राइट। और आपका आर थीटा आएगा पहला टर्म से, आर थीटा आएगा पहला टर्म से माइनस साइन फाई साइन थीटा आई कैप प्लस साइन फाई कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आप कैसे लिखोगे, आई जे के, फिर फर्स्ट सेकेंड रो पे आएगा कॉस फाई साइन थीटा माइनस साइन फाई, और थर्ड रो पे आएगा माइनस साइन फाई कॉस थीटा एंड देन जीरो। तो अब आप ईच कंप्यूट करोगे तो क्या आएगा, आई कैप इंटू कॉस फाई साइन थीटा माइनस साइन फाई कॉस थीटा जीरो माइनस जे कैप कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा सॉरी माइनस जे कैप कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा जीरो, और के कैप आएगा कॉस फाई साइन थीटा माइनस साइन फाई कॉस थीटा। सो आई साइन से क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा, पॉसिबली साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा, जे कंपोनेंट से आएगा माइनस साइन स्क्वायर फाई साइन थीटा, और के कंपोनेंट से आएगा कॉस फाई साइन फाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर, तो ये कॉस फाई साइन फाई आएगा। यहाँ पे टाइपो है, ठीक है, ये कॉस फाई होगा। अब ठीक है सुमित्रा, आपका करेक्ट आया है। यस सर। ओके, आप इसका एक काम करो, इसको करेक्ट कर लो, साइन फाई कॉस फाई कर लो,
उसके बाद एफ डॉट आर, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो एफ का, ठीक है। cos phi I cap प्लस sin phi sin theta j cap sin theta j cap sin theta sin phi sin theta j cap प्लस sin phi cos theta, सॉरी दिस यहाँ पे sin phi cos phi आएगा, ठीक है। इसका sin phi cos theta प्लस sin phi cos theta k cap with cos phi I cap प्लस sin phi sin theta j cap प्लस sin phi cos theta k cap। अगर आप इन सबको कॉम्बाइन करोगे ना, तो मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे टर्म्स आएंगे। पहला डॉट प्रोडक्ट लोगे तो पहला टर्म क्या आएगा, cos फाई साइन स्क्वायर फाई cos थीटा, साइन फाई साइन थीटा तो साइन क्यूब फाई साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा साइन फाई cos थीटा इंटू साइन फाई cos फाई, माने साइन स्क्वायर फाई cos फाई cos थीटा। अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देन इफ यू डू सिंप्लीफिकेशन योर आंसर विल बी 2 साइन स्क्वायर फाई cos थीटा माइनस साइन क्यूब फाई साइन स्क्वायर थीटा, राइट। 2 साइन स्क्वायर फाई cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर फाई cos थीटा माइनस साइन क्यूब फाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे भी टाइपो है। ये आ रहा है क्या ना, अब देख लो, ये आर फाई आर थीटा हमने इसको यहाँ पे क्या आएगा cos फाई, तो उसके बाद उसके साथ आप एफ का बोलो डॉट प्रोडक्ट लो। If you take dot product, you will get 2 sin square phi cos theta minus sin cube phi sin square theta. करेक्ट आया। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेट करने का कोशिश करना, शायद थोड़ा मैं 5 मिनट टाइम देता हूँ, आप करो, ठीक है सुमित्रा, बाकी लोग भी कीजिए प्लीज। तो आपका लिमिट आ गया 0 to पाई से 0 to 2 पाई, and here it is 2 sin square phi cos theta minus sin cube phi sin square theta d phi d theta. Now you have to take integration with respect to theta and phi. Now phi का लिमिट है 0 to pi और theta का लिमिट है 0 to 2 pi. तो सबसे पहले आपको theta को मैनेज करना पड़ेगा। थीटा को कैसे मैनेज करोगे, cos थीटा का इंटीग्रेटिंग ले लोगे, sin थीटा तो पहला टर्म तो पहले ही वैनिश हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ये आपका होगा sin क्यूब फाई sin स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस नेगेटिव आएगा, ठीक है। साइन क्यूब फाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को उस तरीके से रिप्लेस कीजिए, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, और फिर यहाँ पे उसको cos 2 थीटा से रिप्लेस कीजिए, और उसके बाद आप उसको इस हिसाब से इंटीग्रेशन करने का कोशिश कीजिए। फिर साइन क्यूब वो फाई थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। सॉरी, हम यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर थीटा के रेस्पेक्ट में भी 2 पाई किया तो ओके, थीटा के रेस्पेक्ट में भी 2 पाई करेंगे तो cos 2 पाई क्या sin 2 पाई वो खत्म हो जाएगा पहले ही, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेना। फाई का लिमिट होगा 0 to पाई और थीटा का लिमिट है 0 to 2 पाई। इंटीग्रेट करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। सर फिर से डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा चेक कीजिए तो। नहीं, डॉट प्रोडक्ट वही आएगा। मैंने ये माइनस आएगा, ये साइन माइनस आएगा। 2 साइन स्क्वायर फाई cos थीटा माइनस साइन क्यूब फाई साइन स्क्वायर थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कोई इशू आया? आपका क्या आ रहा है?
सर मेरा आ रहा है साइन क्यूब है cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट टर्म जो है साइन साइन क्यूब। क्यूब है cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, और बाकी आपने कुछ गड़बड़ी किया है और मुझे लग रहा है। और इंटीग्रेशन का रिजल्ट 4 पाई आ रहा है, 4 पाई/3 भी अच्छा नहीं आ ठीक है, रहा कोई है। बात नहीं, आप एक बार अच्छे से देखना। मुझे लग रहा है आप डॉट प्रोडक्ट में गलती कर रहे हो। डॉट प्रोडक्ट मैंने खुद किया, मैंने मेरा इसमें नेगेटिव टर्म आएगा, ये श्योर है, ये प्लस नहीं है, इट विल बी माइनस। और ये आपका कॉस फाई है, आप देखो ना ये इजीली आ जाएगा। देखो पहले आपका देखो एफ है ना, तो कॉस फाई के साथ साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई करो तो पहला टर्म आएगा साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा। इधर साइन फाई साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई साइन थीटा, तो साइन क्यूब फाई साइन स्क्वायर थीटा। और इधर साइन फाई कॉस थीटा एंड साइन फाई कॉस फाई, तो साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा कॉस फाई, तो साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा कॉस फाई, इधर भी साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा कॉस फाई, तो 2 साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा कॉस फाई एंड ये सर हियर साइन वो क्यूब। मैंने आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट की थी इसीलिए रॉन्ग आ रहा है। अच्छा हाँ, बाकी ठीक है ना। ये सर हो गया अभी। अभी हो गया कि तो फिर माइनस नहीं आएगा ना यहाँ पे, साइन क्यूब फाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस ही आएगा ना, साइन क्यूब फाई साइन स्क्वायर थीटा यही आएगा ना। यहाँ पे साइन तो ठीक है, ये वाला प्लस आर फाई आर थीटा में साइन का गड़बड़ी तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। इस इक्वेशन को पहले पढ़ो कि ये क्या कहना चाहता है, फिर इस फिगर से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट वी वांट टू डू इन दिस प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से होमवर्क करना, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज Yes, sir. फिशी आउट हेयर, क्योंकि टाइप ये नोट एक्चुअली लैटेक में टाइप करके बनाया गया है, तो कई बार लैटेक में मिस हो जाता है, ठीक है। तो टाइपो होना इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये लेक्चर नोट्स हैं, ये जल्दबाजी में बनाया जाता है, तो इसमें तो होता ही टाइपोस तो हो ही सकता है, मान लो आप। सो एग्जाम्पल 3.37 को समझो। फाइंड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस जेड स्क्वायर के कैप ओवर द पोर्शन ऑफ द पैराबोलिक सिलेंडर गिवन बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 is less than or equal to x less than or equal to 1 and z is varying from 0 to 4.
सुमित्रा समझ में आया कुछ? चलो कोई बात नहीं, मैं और 5 2 मिनट टाइम देता हूँ, आराम से देखो। ये यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, दिस प्रॉब्लम्स आर क्वाइट ट्रिकी, आपको ऐसा आराम से नहीं होगा। यस सर। समझ में आ गया? ये सर नॉर्मल वेक्टर पहले निकालना है। वो नॉर्मल वेक्टर आया 2x आई कैप माइनस जे कैप, फिर ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 2xyz माइनस x आया, फिर अभी इंटीग्रेशन लेना है। तो करो फाइनल आंसर। चलो, so your f is yz I cap plus y equal to xz cap minus z square k cap over the portion of the parabolic cylinder given by y equal to x square 0 less than or equal to x less than or equal to 1 and 0 less than or equal to z less than or equal to 4. We assume the positive direction of the normal n cap on the surface
we have x equal to x, then y equal to x square, and obviously z equal to z. Giving the parameterization as rxz equal to x I cap plus x square z cap plus z k cap over d, given by 0 is x is varying from 0 to 1 and z is varying from 0 to 4. So this is actually basically cylinder, right? Now you need cylinder, इसका आपके ऊपर इधर इस आउटवर्ड ड्रॉन इस साइड्स पे लेना पड़ेगा, ठीक है? ये आपका आउटवर्ड ड्रॉन सरफेस है. तो अब अगर आप f का f आपका ये है, अब इस पे आपको सरफेस का फॉर्मूला पुट कर देना है. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जेड कैप आई कैप प्लस एक्स जेड कैप माइनस जेड स्क्वायर के कैप. अब आपको क्या लेना है? आपके पास आर एक्स है, ठीक है? आपके पास आर एक्स है. आपको अब क्या लेना है? आर एक्स के साथ इसका आपको, ये आर एक्स का आपको डॉट प्रोडक्ट एक्स के रेस्पेक्टिव में पार्शियल डेरिवेटिव लेना. नो 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 हाँ, आर एक्स इसके क्या करोगे तो आर एक्स आएगा आई कैप प्लस 2x जे कैप. तो इसको आप निकालो, क्या आ रहा है देखो सुमित्रा, आर का आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालो एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर निकालो ये जेड होगा. हाँ, यहाँ पे ये दिया गया है, वाई नहीं होगा, ये जेड होगा, ठीक है? सर लिमिटिंग वैल्यू भी जेड में दिया है. हाँ, लिमिटिंग वैल्यू भी जेड में दिया है ना, तो ये आर जेड होगा ना, ये टाइपो है. तो ये आपका बनेगा, पहले क्या आएगा आई कैप प्लस 2x जे कैप और आर जेड लोगे तो बनेगा के कैप. अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. नॉट डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों देखो पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा आर एक्स आर आई. तो दैट्स वाई हम उसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से शिफ्ट कर रहे हैं. ये जो एन डॉट सिग्मा है ना, ये आर के आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल का सब वो देता है, डायरेक्शन देता है. और जैसे आपने आर एक्स ले लिया, आर वाई ले लिया, ये तो आपका दो हो गया सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर आर एक्स आर वाई. तो अब उसके ऊपर आप ऑर्थोगोनल उसका ले रहे हो, और वो जो ऑर्थोगोनल है वो दैट ऑर्थोगोनल इज जस्ट इट्स कार्ल, सॉरी कार्ल बोल रहा हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट. ये सब वो आया था 2x आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट. ये आया क्रॉस प्रोडक्ट 2x आई कैप माइनस जे कैप. ये सर ठीक है, आप सॉल्व कर दो, इसमें तो और बचा नहीं है कुछ, सॉल्व करो. 0.2x4 minus x square by 2 0.1 digit 0.4 z minus by 2 digit z square by 2 minus z by 2 15 8 Yes, sir. 2 wires. हाँ,
आया आंसर 2? तो पहले बताओ ये क्रॉस प्रोडक्ट जो Yes, है, sir. जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ठीक है ना, 2x आई कैप माइनस जेड के कैप. जी सर. ओके, तो दिस इज एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप माइनस जेड स्क्वायर के कैप, 2x आई कैप माइनस जे कैप, तो दिस बिकम्स 2x क्यूब. आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, 2x क्यूब जेड कैप माइनस एक्स डी एक्स डी जेड. अब आपको डी एक्स डी जेड, आप पहले एक्स के साथ, ये तो बच्चों जैसा इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ है नहीं, तो 2 हो गया, आंसर आ गया. चलो खत्म. अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लगातार बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम है. ये एग्जाम्पल 3.8 खत्म क्यों नहीं हो रहा? पहले तो भी दिखा एक, नहीं ये नहीं, चलो कोई बात नहीं. ये वाला प्रॉब्लम करो. इवेलुएट इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी सिग्मा एफ इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड के कैप एंड एस इज द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड इनक्लोज्ड बाय द पैराबोलॉइड जेड माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई 1 माइनस जेड. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया. जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द जेड इक्वल टू 0. तो ये आपका पैराबोलॉइड बन गया है. करो, इस पे सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम को देखो कैसे करना है. सर इसका थोड़ा सा हिंट्स दीजिए. हिंट्स दे दूं? जी ठीक है, सर. कोई बात नहीं. वही एफ डॉट एन डी सिग्मा, वही हिंट्स है. आपके पास एफ है, एफ के ये कंपोनेंट है एम एन पी. आपके पास एफ का फंक्शन है ये एफ एक्स वाई, आपका जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई है. ठीक है, और आपका ये शायद मैंने वो स्किप कर गया, इसका थियोरेटिकल पार्ट है, कोई बात नहीं. आप इसका ये पहला पार्ट ही थोड़ा याद कर लो. ठीक है, मेरा नोट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप थोड़ा पीछे जाके देख लेना. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है डी माइनस एम एफ एक्स माइनस एन एफ वाई प्लस पी डी है.
और m and p are your components of the force. This force, whatever force is given, vector is given, and then f का तो आपके पास एक्सप्रेशन है, f का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो उसके बाद आप ये वाला पार्ट फर्स्ट लाइन लिख लो, उसके बाद जो कैलकुलेशन है उसको कर. Yes, sir, pi by 2. पाई बाई 2. ओके. और फाइनल आंसर आपका जो कुछ दो और सरफेस है ना, एक तो ये नीचे वाला भी है, नीचे वाला में जीरो आ जाएगा. ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, क्योंकि इसका है माइनस के कैप बनेगा, आउटवर्ड ड्रॉन सर माइनस के कैप, और एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो वेनिश हो जाएगा. ठीक है. और माइनस जेड कैप डी ए, माइनस जेड का आप फिर इंटीग्रेट लोगे सर्कल के ऊपर, तो जस्ट ये कि इसके ऊपर ही इंटीग्रेट आएगा. पाई बाई 2 कैसे आ रहा है, ये तो थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है. इसके बाद इसको पोलर कोऑर्डिनेट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो 1 प्लस पोलर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस. सुमित्रा, आपने पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर किया था? यस सर. ठीक है, फिर तो ठीक है.
चलो अब हम चलेंगे स्टोक्स थ्योरम की ओर। स्टोक्स थ्योरम हमेशा याद रखना, तीन थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड एक और आएगा उसका नाम है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। मुझे पता नहीं वो शायद नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, वो शायद है क्या है इसमें स्लाइड में। हाँ, ये गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, इतना था कि मैं आज पढ़ाऊंगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोक्स थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ रखा है, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, लेट एस बी एन ओरिएंटेड पीसवाइज स्मूथ सरफेस that is bounded by a simple closed piecewise smooth boundary curve delta s with positive orientation. Let f equal to mi plus nj plus pk be a vector field with m and p having continuous partial derivatives on an open region in space that contains s. Then in f dot dr का बाउंड्री के ऊपर इंटीग्रेशन कार्ल ऑफ f का सरफेस इंटीग्रल के साथ इक्वल होगा। क्या बढ़िया थ्योरम है ना। एक की तरफ आप f के ऊपर कर रहे हो, दूसरा आप कार्ल f के ऊपर कर रहे हो, लेकिन दोनों का रिजल्ट आएगा सेम। ये क्या देता है, ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशनशिप देता है। आप देखो ग्रीन्स थ्योरम में भी आप वही करते थे, है ना। ग्रीन्स थ्योरम में भी आप वही करते थे, आप dx dy है वहां पे m dx n dy और फिर आप डेल n डेल x माइनस डेल m डेल y dx dy करते हो ग्रीन्स थ्योरम में। यहाँ पे आप क्योंकि वहां पे एक ही क्योंकि x और y है, उसका 3D जनरलाइजेशन ये स्टोक्स थ्योरम है। ये क्या है, रिकॉल दैट ग्रीन्स थ्योरम रिलेट्स डबल इंटीग्रल ऑन इन द प्लेन टू ए लाइन इंटीग्रल ओवर इट्स बाउंड्री। वी विल हैव ए जनरलाइजेशन दिस इन 3 डायमेंशन एंड दिस 3 डायमेंशन ये है क्या है, सिर्फ स्टोक्स थ्योरम है। इसको थोड़ा सा आप इसको कॉपी में लिख लो इस थ्योरम को, उसके बाद हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। यस सर। ओके
नेक्स्ट मूव टू सम सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, कंसीडर द एस एज द हेमिस्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपका एफ जो है वो वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप है। So the bounding curve for S in the xy plane is delta S, which is given by x square plus y square equal to 9, z equal to 0. Parameterization of delta S is r theta equal to 3 cos theta I cap plus 3 sin theta j cap for 0 less than or equal to theta less than or equal to 2 pi. Then f dot dr is 0 to 2 pi 3 sin theta I cap minus 3 cos theta j cap minus 3 sin theta I cap plus 3 cos theta j cap d theta। सुमित्रा, माइक का उल्टा पुल्टा आवाज तो नहीं आ रहा? ये शायद थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है माइक में। अच्छा ठीक है। हमने कितना टाइम क्लास ले लिया? 1 आवर 12 मिनट, 1 आवर हो गया है। आपने 12 मिनट क्लास किया है? यस सर। आपने कब ज्वाइन किया था? आपने कितने बजे ज्वाइन किया था एग्जैक्टली बताओ। आपने कितने बजे ज्वाइन किया था सुमित्रा? 6 एग्जैक्टली 6 6:05 में। अच्छा 6:05 में, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं अभी करीब 10-15 मिनट क्लास ले लूँ तो चलेगा? एक्चुअली हमारे यहाँ पे फीस्ट क्या कहते हैं उसे, फेस्ट होता है, फेस्ट हो रहा है और फेस्ट की वजह से अभी माइक बजना स्टार्ट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं अब छोड़ दूंगा, ठीक है 7:40 तक छोड़ दूंगा, 7:42 तक छोड़ दूंगा, ठीक है। सर आई विल गो थ्रू द पीडीएफ। तो मैं पीडीएफ ऑन करके रखूँ, इसको बंद करके, माइक को बंद करके? नो सर, मैंने डाउनलोड की, उसका थोड़ा सा कर ली है। ठीक कर ली है? ये सर वो आप लिंक में अपलोड। ठीक है ठीक है ठीक, तो उसका थोड़ा थोड़ा की है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो। और बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया? नहीं ठीक। और जो लाइव वो जो वीकली क्लास है उसका वो नहीं की, वो उसका मैं कर लूंगी। अच्छा अच्छा। आपका जो पीडीएफ है उसका थोड़ा सा की है, लेकिन वो जो सर का क्लास है वो नहीं की, लेकिन कर लूंगी। अच्छा ठीक है चलो, एक काम करता हूँ, मैं अपना माइक बंद करके रखता हूँ, मैं प्रॉब्लम खोल के रखता हूँ, तुम उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? ओके, क्योंकि मुझे टाइम फिल करना है थोड़ा, और 10-15 मिनट रहता है, नहीं तो मेरा 1 घंटा कट हो जाएगा। 2 आवर्स करना है? 2 आवर्स नहीं करना है, 1.5 आवर में चल जाएगा। मैंने अभी मेरे घड़ी में 7:25 बज रहा है, मेरा लैपटॉप थोड़ा फास्ट है, तो मैं इसके हिसाब से 7:42 तक करूँगा तो मेरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है? यस सर। तो मैं प्रॉब्लम छोड़ देता हूँ, तुम इसको देखो आराम से।
चलो थोड़ा साउंड, चलो अब साउंड कम हो गया। ओके, so we need to consider S as the hemisphere, x square plus y square plus z square equal to 9, fr equal to y I cap minus x j cap, x y z का लगा दो 3 cos थीटा। सर जो कॉल एफ है, हाँ, उसका थोड़ा बता दीजिए। कार्ल एफ का फॉर्मूला क्या है? आई कैप जे कैप के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं, एक्स वाई जेड कर लो ना, फिर थीटा से रिप्लेस कर देना। कार्ल निकालो ना, एफ का वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप है, तो आपको कैसे लिखोगे? आई जे के फास्ट रो, देन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, देन वाई माइनस एक्स जीरो, तो उसका फिर डिटर्मिनेंट ले लो, आपका फिर आ जाएगा कार्ल। इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है, आप प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ना, जेड इक्वल टू 0 पे आपको हेमिस्फीयर का, तो बाउंड्री कौन सा है? एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है पी वाई एन एन जेड है, इसको देख के मुझे कंफ्यूजन हुआ। नहीं नहीं, ये मत आप ऐसे कार्ल एफ को निकालो। -2 क्या आया? -2 क्या आया ना आपका आंसर? ये सर मुझे लगा ये कुछ नया फॉर्मूला है। नहीं नहीं, ये फॉर्मूला नहीं, ये डिटर्मिनेंट को ही इन्होंने ऐसे ब्रेक करके लिखा है और कुछ नहीं। डिटर्मिनेंट को ही उन्होंने ब्रेक करके ऐसे एक टर्मिनोलॉजी की तरफ उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, देखो फिर g है, g इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन, वी हैव एन कैप इक्वल टू ग्रेड जी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेड जी, सो 1/3 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, p इक्वल टू आपका के कैप डी सिग्मा इज ग्रेड जी बाई ग्रेड जी डॉट पी, जैसे हम उसमें करते हैं सरफेस इंटीग्रल में,
तो यहाँ से तो हमें माइनस 18 पाई आ गया, तो अब सरफेस इंटीग्रल लेके भी करोगे तो स्टिल यू विल गेट माइनस 18 पाई। सो कार्ल एफ डॉट एन डॉट सिग्मा इन डबल इंटीग्रेशन माइनस 2z बाई 3 डी सिग्मा माइनस 2z बाई 3, और इधर से आपका 3/z आ गया, z कट हो गया, माइनस 2 डी ए, और डी ए आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन, तो 3 स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आता है 9 पाई। सो 2 इंटू 9 पाई आपका हो जाता है माइनस 18 पाई। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, I'll move to one more problem. This is our last problem. ठीक है, evaluate integration c x square minus y I cap plus 4z j cap plus x square cap cap dot dr, where c is the intersection of the plane z equal to 2 and the cone z equal to square root of x square plus y square. Now you parameterize the cone as r theta equal to r cos theta plus r sin theta plus r k cap. Okay, now your r is varying from 0 to 2, theta is varying from 0 to 2 pi. Now you need to determine n cap. n cap क्या होता है, आपके पास r और थीटा है, ठीक है, तो r क्रॉस r थीटा, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, फिर आप उसका नॉर्मल ले लो, सॉरी आप उसका फिर एब्सोल्यूट ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये आपका बन जाता है 1/√2 माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस के कैप। सुमित्रा आप इसको वेरीफाई करो, ठीक है, फिर आप इसका एफ का कार्ल भी निकालो और देखो कार्ल एफ क्या आ रहा है, और फिर कार्ल एफ के साथ उसको फिर आप आर थीटा प्लेन में कन्वर्ट करो, आर थीटा पुट करके एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, जेड की जगह पे आर, फिर कार्ल एफ और डॉट एन निकालो। अच्छा ये मैं बता देता हूँ डी सिग्मा कैसे आया। तो ये देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आर स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर आता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, और आपके पास थीटा और आर है तो डी आर डी थीटा आया और उसका फिर रूट स्क्वायर रूट आ गया, तो दैट इज आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डी सिग्मा, इसका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद फिर डी आर डी थीटा। जैसे अगर सिर्फ सर्कल होता तो क्या आता, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो आर, सो आर डी थीटा डी आर बन जाता है। ये आपका डी सिग्मा का एक्सप्रेशन है। आप ये तीनों को प्लीज क्रॉस वेरीफाई कर लो, कार्ल एफ डॉट एन, इन तीनों को क्रॉस वेरीफाई कर लो।
सुमित्रा ये क्रॉस चेक हुआ? ये सर कॉलेप निकल जाए। और कारलेप डॉट एन करो। ये सर अब आप स्टोक्स थ्योरम लगाओ। एफ डॉट डी आर करो। एफ डॉट डी आर का क्या मतलब है? एफ डॉट डी आर इज कार्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी सिग्मा। सो 0 to 2 पाई 0 to 2 4 cos थीटा प्लस 8 sin 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, और ये तो टू स्क्वायर रूट टू कैसा हो, कैंसिल आउट हो गया 8 डी आर डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट करके 4 पाई निकालो सुमित्रा। देखो आंसर क्या आ रहा है, क्रॉस चेक करो। ये सर 4 पाई। आंसर आ गया 4 पाई। ये सर चलो बढ़िया, थैंक यू सुमित्रा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? ये सर ओके बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर जाना। हाँ ये सर बाय।